Hello student, today we are going to learn next problem, admission of a partner, problem number 5 and your textbook problem number 8, page number 147. Okay, open your textbook and check in your textbook. See what we learn in this chapter. In this problem we learn advertisement suspense account related concept, investment fluctuation reserve related concept, and as well as we calculate here new capital or adjusted capital of all partners. Okay, important adjustment in this problem is calculation of capital. See, this is a problem, page number 147, problem number 8. The balance sheet of Anil and Samir, who shares, sorry, the balance sheet of Adil and Samir, who shares profit in the ratio 2:1 on 31st March 2018. See here, Adil and Samir's profit sharing ratio is a 2:1. Old ratio is what? 2:1. Here they given old balance sheet. Capital, Adil capital, Samir capital. Adil capital 90,000, Samir capital 48,600, that can be credited to partners capital account credit side. Partners capital account, where credited partners capital account. Next, investment fluctuation reserve, that can be pending. Next, general reserve, everybody know, always everybody know, reserve for or reserve, general reserve always be distributed to all partners in their old ratio. So with that one amount distributed in old ratio. Old ratio is what? 2:1. So after distribution amount is what? 8,000, 4,000. General reserve 8,000, for Samir 4,000. Okay. Then creditors is it posted to new balance sheet liability side. Next, bills payable, same as it is, posted to new balance sheet liability side. Then asset side, see first balance we seen here, हमें पहला वाला बैलेंस दिख रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग 75,000, दैट कैन बी वी रिकॉर्डेड न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड. Investment, new balance sheet asset side. Debtors, new balance sheet asset side. Then we will see next one balance is what? Goodwill. Okay, तो ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पे गुडविल की अमाउंट दी है. आज तक ओल्ड बैलेंस शीट में कभी भी आज तक के प्रॉब्लम में गुडविल की अमाउंट नहीं दी थी, बट यहाँ पे दी है. तो इसके लिए हम सेपरेट से अकाउंट क्रिएट करेंगे, गुडविल अकाउंट, और उसके डेबिट साइड में उसकी पोस्टिंग होगी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹12,000. ओके, याद रखो यहाँ पे. द नेक्स्ट वन, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट 12,000. हियर दे गिवन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट. तो ऑलवेज रिमेंबर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का बैलेंस भी यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स को इन द ओल्ड रेशियो. याद रहेगा. देखो क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है. जनरल रिजर्व तो करना ही है, बट प्रॉफिट और लॉस का बैलेंस भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है किसे? ओल्ड पार्टनर्स को देयर ओल्ड रेशियो. मगर ओल्ड बैलेंस शीट में प्रॉफिट और लॉस का बैलेंस देख के आता है तो कंपल्सरी दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो. अंडरस्टूड एवरीबडी. तो यहाँ पे भी यही आंसर होगा 8,000 एंड 4,000. अभी ये कहाँ पे पोस्ट होगा? एसेट साइड. एसेट है मतलब डेबिट बैलेंस होता है, तो कहाँ पे जाएगा ये? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड और क्रेडिट साइड. यस, it is recorded partners capital account credit side, where we recorded partners capital account credit side. Next one, advertisement. As advertisement suspense account. Advertisement suspense is one type of revenue. So revenue we consider here
is a part of accumulated losses that therefore it should be transferred to partners capital account debit side, where we posted partners capital account debit side. याद रहेगा सबको. Advertisement suspense is a accumulated loss, is a part of accumulated loss, that's why it should be transferred to partners capital account debit side, where we posted partners capital account in their ओल्ड रेशो में ही जाएगा. इसे याद रखो. ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट एग्जैक्टली क्या है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मुझे आपको बतानी है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है कैश. तो कैश के लिए सेपरेट अकाउंट क्रिएट करने वाले, दैट्स वाई ये बैलेंस कहाँ पे जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट साइड. कैश अकाउंट डेबिट साइड. डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड जाता है, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट से आता है. देखो याद रखो, ओल्ड बैलेंस शीट में जितने भी बैलेंसेस दिए हैं एसेट्स मतलब डेबिट बैलेंस, तो वो डेबिट ही साइड जाएंगे. अगर वो क्या है लायबिलिटी साइड बैलेंस है तो लायबिलिटी बैलेंस मीन्स क्रेडिट कहलाता है. दैट्स वाई दैट बैलेंस पोस्टेड टू क्रेडिट साइड. तो फिर से एक बार बैलेंस शीट बताती हूँ कहाँ पे किसकी पोस्टिंग होगी. लायबिलिटी साइड बताती हूँ. फर्स्ट वन लायबिलिटी साइड में फर्स्ट वन बैलेंस दिया था कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आदिल एंड समीर, दैट कैन बी पोस्टेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसे पेंडिंग रखेंगे, बाद में देखेंगे एडजस्टमेंट कुछ दी है क्या तो ही पोस्टिंग करेंगे उसकी. जनरल रिजर्व तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये इज अ पार्ट ऑफ ओल्ड प्रॉफिट और लॉसेस. इसका पार्ट उसका पार्ट है, ओल्ड प्रॉफिट और लॉसेस का पार्ट है. दैट्स वाई दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशो, सो वी पोस्टेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. नेक्स्ट क्रेडिटर्स वी पोस्टेड टू न्यू बैलेंस शीट liability side. Bills payable same as it is, posted to new balance sheet liability side. Then land and building asset side, land and building new balance sheet asset side. Investment new balance sheet asset side. Debtors new balance sheet asset side. Goodwill यहाँ पे separately account create करने वाले, that's why that can be recorded गुडविल अकाउंट डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. कहाँ पे लिखेंगे गुडविल, तो न्यू अकाउंट क्रिएट करने वाले हैं उस अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे 12,000. देन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट और लॉस, दैट्स वाई दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशो. तो ये भी कहा होगा ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा. ये डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड ही जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट 8,000 एंड 6,000. देन एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये भी क्या है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, देयरफॉर इट शुड बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशो. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड इन देयर रेशो. ओल्ड रेशो क्या होगा उनका, उस रेशो में हमें ये डिस्ट्रीब्यूट करना है. ओके, नेक्स्ट दिया है कैश के लिए सेपरेट अकाउंट क्रिएट करने वाला, तो सेपरेट अकाउंट क्रिएट करने के बाद उसका बैलेंस पोस्टेड होगा कैश अकाउंट डेबिट साइड 30,600. अंडरस्टूड एवरीबॉडी. देखो यहाँ पे हमें किसके ऊपर फोकस करना है. एक तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, गुडविल का बैलेंस एंड एज वेल एज जनरल रिजर्व. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन ये बाद में देखते हैं, बट राइट नाउ यहाँ पे आपको इसमें फोकस करना है. बाद में प्रॉब्लम दिखाऊंगी आपको सॉल्व किया हुआ, वहाँ पे दिखेगा आपको एग्जैक्टली कहाँ पे पोस्टिंग की है और कहाँ पे नहीं, और उसका एग्जैक्टली क्या करना है. तो मैंने यहाँ उसे अंडरलाइन की है या हाईलाइट किया है एग्जैक्टली आपको किस एडजस्टमेंट के ऊपर फोकस करना है. एडवर्टाइजमेंट, फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट, सेकेंड प्रॉफिट और लॉस, गुडविल, जनरल रिजर्व. ये हमेशा याद रखना है, क्या करना है उसके बारे में ये देखना है हमें. ओके, ठीक है.
आपको समझ में आया होगा, मैंने कहाँ पे पोस्टिंग करने के लिए कहा है। ओके, देन देखते हैं ऑन 1st April 2018 राजू वॉज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप एज ऑन फॉलोइंग टर्म्स। ऑन 1st April राजू एडमिट हो गया एज अ पार्टनर ऑन पार्टनरशिप फर्म, तो सॉरी इनटू पार्टनरशिप फर्म ऑन फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। तो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, राजू पे मतलब उसे गुडविल लाना है ₹30,000 एज ही कैपिटल फॉर 1/4 शेयर। ओके, 1/4 शेयर के हिसाब से वो 30,000 कैपिटल लाने वाला है बिजनेस के अंदर। जब न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आता है तो उसकी एंट्री होती दैट कैश वॉज कम्स इन द बिजनेस, दैट्स वाई कैश अकाउंट डेबिट टू राजूज कैपिटल अकाउंट। अंडरस्टूड एवरीबडी, यहाँ पे कैश बिजनेस में आ रही, दैट्स वाई फर्स्ट एंट्री होगी व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल, देन एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू राजूज कैपिटल अकाउंट अमाउंटेड ₹30,000। ओके, उसकी पोस्टिंग होगी, एक तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्टिंग होगी, कैश अकाउंट डेबिट साइड टू राजूज कैपिटल ₹30,000। सेकेंड पोस्टिंग होगी उसकी, या सेकेंड इफेक्ट होगा उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय कैश ₹30,000 अंडर राजूज कॉलम, राजूज के कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, राजू पेज ₹15,000 फॉर गुडविल। यहाँ पे याद रखो उसने उसे गुडविल देना है, पहले से गुडविल था 12,000, फिर भी अभी वो गुडविल भी दे रहा है जब वो न्यूली एडमिट होता है। तो न्यूली एडमिट होता है तो कंपलसरी याद रखना, उसकी पोस्टिंग करना भूलना नहीं है। पहले जनरल एंट्री बताती हूँ, जनरल एंट्री क्या होगी, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल देन एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट एंड दैट गुडविल ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब रिटेन इन देयर सैक्रिफाई रेशो या ओल्ड रेशो, तो उसे डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है। तो 15,000 डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उसकी जनरल एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स मतलब आदिल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू समीर कैपिटल। अभी सिर्फ मैं उसके हाफ पार्ट की एंट्री बता रही हूँ, मतलब सिर्फ मैंने इतनी एंट्री बताई गुडविल रिलेटेड, ही ब्रिंग गुडविल, बस जस्ट इतना ही बता रही। तो जब वो गुडविल लाता है तो उसकी पोस्टिंग होगी, एक तो कैश पोस्टिंग होगी गुडविल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय कैश और कैश अकाउंट डेबिट साइड टू गुडविल। दूसरी पोस्टिंग होगी मतलब जनरल एंट्री होगी उसकी, एक जनरल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका, डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय गुडविल, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो गुडविल जो भी है वो 10,000 एंड 5,000 हो गया। उसकी दूसरी पोस्टिंग होगी गुडविल अकाउंट क्रेडिट साइड गुडविल अकाउंट डेबिट साइड टू आदिल कैपिटल टू समीर कैपिटल 15,000 एंड 5,000, 10,000 एंड 5,000 ये हो गया। देन बाद में देखते हैं उसके बाद में क्या लिखा है, उसके बाद में लिखा है हाफ अमाउंट सम इज टू बी विड्रॉन बाय आदिल एंड समीर। अभी जो भी 50,000 राजू ने लाए थे वो हमें क्या करने, विड्रॉन करने। वो पहले वाले तो विड्रॉन करेंगे ही, पहला वाला गुडविल है तो वो विड्रॉन होगा ही, ओके। लेकिन अभी ये भी अमाउंट क्या होगी, विड्रॉन होगी। तो ये अमाउंट विड्रॉन के होने के बाद एंट्री होगी, जब गुडविल विड्रॉन होता है तो उसकी एंट्री करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू बैंक 50% मतलब हाफ अमाउंट मतलब 50% मतलब 15,000 के हाफ 7,500 हो रहे, तो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओके। तो वहाँ पे जाएगा 5,000 7,500 ये होगा। और दूसरा इफेक्ट होगा गुडविल अकाउंट में, कहाँ पे बैंक अकाउंट में होगा। दूसरा इफेक्ट कहाँ पे होगा, बैंक अकाउंट में। अभी बाद में जब आंसर दिखाऊंगी तो आपको दिखाती हूँ एग्जैक्टली कहाँ पे पोस्टिंग की है। अभी आप सोचते हो कि वो ओल्ड अमाउंट ही उसका क्या करना है, उसे भी क्या करना है, विड्रॉन करना है। जो ओल्ड अमाउंट ही है गुडविल की उसे भी क्या करना है, विड्रॉन करना है, ओके, याद रहेगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, आरडीडी इज क्रेडिटेड 10%, डेटर्स के ऊपर 10% कितने आ रहा है, 39,000 डेटर्स है तो 39,000 के ऊपर 10% आते हैं 3,900, तो क्या होंगे, लेस होंगे। यहाँ पे एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी, दैट्स वाई उसका इफेक्ट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड, ओके। उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, फिर जनरल एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडी अकाउंट या प्रोविजन ऑन डेटर्स अकाउंट, हो गया कंफर्म। नेक्स्ट
The value of land and building is appreciated by 30%, 30,000. लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएट हुआ है, मतलब इंक्रीज हो गया. लैंड एंड बिल्डिंग की ऐसी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज. अमाउंट है ₹30,000 से, पहले कितनी थी लैंड एंड बिल्डिंग, 75,000 थी, है ना. देखो 75,000 है तो इंक्रीज हो गई 30,000, तो एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गया. अब एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो कहाँ पे लिखते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड. ओके, एंड एड अंडर लैंड एंड बिल्डिंग. अभी उसकी जर्नल एंट्री करनी है तो एंट्री होगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. अंडरस्टूड. देन इन्वेस्टमेंट वेर रिड्यूस बाय 22,500. अभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में जो भी रिड्यूस हो रही है अमाउंट 22,500, उसमें कंसिडर करना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी. ओके, तो डिडक्शन करते समय यही करेंगे 22,500, जैसे आरडीडी का करते थे हम, सेम एज इट इज़. तो यहाँ पे डिडक्ट करते समय, इन्वेस्टमेंट से डिडक्ट करते समय अमाउंट 22,500 ही करेंगे. बट उसके पहले से हमें प्रोविजन करके रखी है. यस, प्रोविजन करके रखी थी, दैट्स वाई रिजर्व तो मिला ना हमें ओल्ड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड. तो जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट पोस्टिंग करेंगे तो वहाँ पे लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे 22,500 माइनस 15,000, उसमें से 15,000 माइनस करनी. जो रिमेनिंग अमाउंट है 7,500, उसकी ही पोस्टिंग होगी. याद रहेगा सबको क्या करना है. तो 22,000 में से पहले से इंक्लूड है रिजर्व की अमाउंट, तो रिजर्व तो किया है ना हमने, तो वो निकालने होंगे, पहले से साइड में रिजर्व करके रखे. दैट्स वाई लेस करेंगे 15,000, तो 7,500 की ही पोस्टिंग होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट. उसकी जनरल एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 7,500. ओके. नेक्स्ट, क्रेडिटर्स आर टू बी वैल्यूड एट ₹62,250, 62,250. देखो पहले से क्या है 63,000 है, अभी क्या हो गया, रिड्यूस हो रहा है. क्या हो रहा है, लायबिलिटी की वैल्यू रिड्यूस हो रही है. दैट्स व्हाई वी रिकॉर्डेड रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड. क्या कहाँ पे लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड लिखेंगे. कितने, 750. एंड उसकी जनरल एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. लास्ट वन एडजस्टमेंट बताया है, कैपिटल ऑफ आदिल एंड समीर टू बी एडजस्टेड टेकिंग राजूस कैपिटल एज बेस. एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज टू बी मेड थ्रू कैश. पहले वाला इस एडजस्टमेंट में पहले वाली जो सेंटेंस है या स्टेटमेंट है, उसका कहना है कि हमें न्यू एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट करना है या न्यू कैपिटल कैलकुलेट करना है आदिल और समीर का, यूजिंग मतलब यूजिंग राजूस कैपिटल. जो न्यू पार्टनर आया है उसके हिसाब से हमें क्या लेना है, न्यू कैपिटल कैलकुलेट करना है. कैसे कैलकुलेट करना दिखाती हूँ, बट जब हमें न्यू कैपिटल कैलकुलेट करना होता है या एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट करना होता है तो हमें न्यू रेशो की ज़रूरत होती है. तो हमें यहाँ पे न्यू रेशो की वर्किंग नोट भी करनी होगी. और बाद में उन्होंने लिखा है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज़ टू बी मेड थ्रू कैश. मतलब अभी हमने कैपिटल कैलकुलेट करने के बाद कैपिटल की एंट्री होगी, फिर जो भी डिफरेंस आएगा वो हमें कैपिटल नहीं दिखाना है. याद रहेगा सबको. आज तक क्या करते थे, पार्टनर्स कैपिटल टैली करने के बाद जो भी डिफरेंस आता है तो वो डिफरेंस हमें ऐसे कैपिटल दिखाते हैं. अभी जो भी डिफरेंस आएगा दैट डिफरेंस कैन बी एडजस्टेड इन कैश. किस में करना है, कैश में एडजस्ट करना है. तो पहले मैं आपको कैपिटल कैलकुलेशन कैसे करना वो दिखाती हूँ. देखो यहाँ पे आपकी दिख रहा है कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल ऑफ पार्टनर्स. तो पहले हमें कैलकुलेट करना है न्यू रेशो. मैंने अभी बताया था न्यू रेशो कैलकुलेट करना है तो बैलेंस ऑफ 1 निकालना होगा, बैलेंस रेशो निकालना होगा. तो बैलेंस ऑफ 1 या बैलेंस रेशो निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं 1 माइनस न्यू पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. तो यहाँ पे न्यू पार्टनर का रेशो क्या था, 1/4 था, 1/4 था. तो 1/4 माइनस करने के बाद हमें बैलेंस रेशो मिल गया, मतलब 4 1 ज़ा 4, 4 माइनस 1 3, 3/4. वी गॉट आंसर 3/4. तो 3/4 इज अवर बैलेंस रेशो या बैलेंस ऑफ 1. तो पहले कैलकुलेट करते आदिल का न्यू रेशो. तो ओल्ड रेशो का न्यू रेशो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशो मल्टीप्लाइड बाय बैलेंस ऑफ 1 रेशो या बैलेंस रेशो.
ओल्ड रेशो क्या है 3:2, 2:1 है, क्या है 2:1, मतलब 2 शेयर्स किसके, आदिल के है एंड 1 शेयर समीर का है। टोटल नंबर ऑफ 3 शेयर्स है, 3 में से 2 किसके है, आदिल के, एंड 1 किसका है, समीर का। दैट्स वाई यहाँ पे लिखेंगे 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/4। ये 3/4 क्या है, तो बैलेंस रेशियो हमने निकाला था वो है 3×2 = 6, 3×4 = 12। तो यहाँ पे समीर का आदिल का रेशियो हमें मिला। सेम एज इट इज हम कैलकुलेट करते समीर का भी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेयर 3 थे, उसमें से 1 शेयर किसका था, समीर का था, मल्टीप्लाइड बाय 3/4। तो उसका भी आंसर मिल गया, क्या है 3×1 = 3, 3×4 = 12। ओके, बाद में हमें देखना है जो राजू है उसका 1/4, बट डिनोमीटर इस सबका 4 है क्या, नहीं है, 12 है। तो अभी 4 का डिनोमीटर 12 करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। अगर डिन्यूमरेटर को अगर मल्टीप्लाई किया जाता है जिस नंबर से, उसी नंबर से हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। दैट्स वाई यहाँ पे आंसर आएगा 3×1 = 3, 4×3 = 12। सो आंसर आ रहा है 6:3, 3:3। यहाँ इसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते फिर हमें न्यू रेशो पता चलेगा, क्या है न्यू रेशो है क्या है, तो 2:1:1। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं कैपिटल। अभी रेशो तो मिला हमें, रेशो क्या है 2:1:1। अभी क्या करते हैं कैपिटल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से ही एडजस्टमेंट में दी थी। दैट इज कैपिटल ब्रिंग बाय राजू ₹30,000 फॉर 1/4 शेयर। तो यहाँ पे ऐसे लिखना है कि उसका 1 शेयर था तो उसने 30,000 कैपिटल लाया, तो नंबर ऑफ 4 शेयर के लिए कैपिटल कितना, तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने के बाद क्या मिल रहा है, 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, 1,20,000। टोटल कैपिटल अमाउंट क्या मिली हमें यहाँ पे 1,20,000। तो अभी 1,20,000 हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं नियर देयर न्यू रेशो में। न्यू रेशो क्या था 2:1:1। तो वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहले आदिल के लिए 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/4 कर देते हैं। 4 कैसे, तो 2+1+1 कितने हो गए 4, न्यू रेशो के हिसाब से। तो आंसर आया यहाँ पे आदिल का न्यू कैपिटल 60,000। सेम एज समीर का भी किया, समीर का आंसर आया 30,000, और राजू का तो हमें पहले से ही पता था 30,000 है। तो न्यू कैपिटल आया तीनों पार्टनर का 60,000, 30,000 एंड 30,000। अंडरस्टूड एवरीबॉडी। अभी सॉल्यूशन देखते हैं। ये स्क्रीनशॉट निकाल के रखो, मैं दिखाती हूँ फिर से, निकालो स्क्रीनशॉट निकाल के रखो अभी। इसकी भी निकालो। ओके, अभी सॉल्यूशन देखते हैं। पहले कौन सा अकाउंट बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अनदर नेम इज व्हाट, प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। देखो सबसे पहले एडजस्टमेंट थी, क्या थी एडजस्टमेंट, सबसे पहले वाली एडजस्टमेंट थी राजू पे ₹30,000 एज हिज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर। तो उसकी एंट्री करते पहले, तो उसकी एंट्री पहले होने के लिए कहाँ पे जाएंगे हम, पोस्टिंग तो हमने पहले से मैंने बताया कैसे करनी है। तो उसने क्या क्या लाया है, कैपिटल लाया है, तो उसकी पहली एंट्री होगी। कैपिटल लाने के बाद एंट्री फर्स्ट एडजस्टमेंट फर्स्ट इफेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय कैश अंडर कॉलम राजू, योगी फर्स्ट एडजस्टमेंट। ये है फर्स्ट एडजस्टमेंट फर्स्ट इफेक्ट। उसका दूसरा इफेक्ट होगा कैश अकाउंट डेबिट साइड। अभी कैश अकाउंट दिखाती हूँ मैं आपको।
कैश अकाउंट डेबिट साइड टू राजूस कैपिटल ₹30,000. अंडरस्टूड? ओके. जर्नल एंट्री, क्योंकि आपको जर्नल एंट्री करनी है, आपके लिए होमवर्क क्या होगा, जर्नल एंट्री. देन सेकेंड एडजस्टमेंट क्या है, राजू पेज 15,000 फॉर गुडविल. तो उसकी गुडविल की एंट्री, गुडविल लाने के बाद उसकी एंट्री होगी गुडविल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय कैश, और दूसरा इफेक्ट होगा कैश अकाउंट डेबिट साइड टू गुडविल अकाउंट 15,000. दिखा, दोनों भी इफेक्ट. गुडविल लाने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट भी होता है. क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है. तो डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री होगी. तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फर्स्ट इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू आदिल कैपिटल 10,000 टू समीर कैपिटल 5,000. ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट. उसका सेकेंड इफेक्ट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय गुडविल 10,000 एंड 5,000. अंडरस्टूड? उसी एडजस्टमेंट में ऐसे लिखा था हाफ ऑफ सम अमाउंट विड्रॉन बाय आदिल एंड समीर. इसमें से हाफ अमाउंट अभी विड्रॉन करनी है. ये तो जो बैलेंस दिख रहा है ये ओल्ड वाला बैलेंस था. ओके. ओल्ड बैलेंस भी हमें क्या करना है, विड्रॉन करना है. देखो यहाँ पे दिखाती हूँ, ओल्ड बैलेंस है, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा, और इसे विड्रॉन भी करना है. विड्रॉन करना है, ओल्ड बैलेंस भी क्या करना है, विड्रॉन करना है. तो ये हो गया ओल्ड बैलेंस विड्रॉन हो गया. ओके. देन मैंने बताया था एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट कहाँ पे लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड. क्यों, उसका रीजन भी बताया था, इज अ पार्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस. ओके. एंड हाफ अमाउंट मतलब 15,000 के हाफ अमाउंट क्या किए, विड्रॉन किए पार्टनर. तो उसका इफेक्ट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू कैश 5,000 एंड 2,500. उसका दूसरा इफेक्ट होगा कैश अकाउंट क्रेडिट साइड बाय आदिल कैपिटल 5,000 टू समीर कैपिटल 2,500. ओके. अंडरस्टूड? नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं क्या है. आरडीडी इज क्रिएटेड एट 10%. 10% आरडीडी क्रिएट करनी है डेटर्स के ऊपर. तो 10% आरडीडी क्रिएट कर लेते हैं. तो 10% क्रिएट करने के बाद क्या होगा, उसमें से लेस होगा 39,000 में से 3,900 लेस होने के बाद रिमेनिंग अमाउंट है 35,100. ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट. सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे होगा उसका, यहाँ पे आरडीडी लिखते तो भी चलेगा, या प्रोविजन टू डाउटफुल डेब्ट्स ₹3,900. अंडरस्टूड? बाद में लैंड एंड बिल्डिंग रीवैल्यू एप्रिसिएटेड बाय 10%. लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो रही है, अप्रिसिएट हो रही है. तो उसका इसका फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पे, और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, एड अंडर लैंड एंड बिल्डिंग. इन्वेस्टमेंट रिड्यूस बाय 22,500. तो उसमें से वो 1,08,000 में से लेस होगा, और दूसरा इफेक्ट होगा यहाँ पे उसका, यहाँ पे 7,500. कैसे बताया मैंने, यहाँ पे जो पहले से हमने रिजर्व करके रखे तो वो रिजर्वेशन यहाँ से लेस होंगे. तो एग्जैक्टली हमें एक्सपेंसेस कितने, 7,500 ओनली हमने पहले से प्रोविजन थी. दैट्स वाई हमें कितना लिखना है यहाँ पे, 7,500. नेक्स्ट देखते हैं, क्रेडिटर्स आर वैल्यूड एट ₹62,250. अभी क्रेडिटर्स क्या हो गया, 62,250. कितने थे पहले क्रेडिटर्स, 63,000 थे. कितने थे, 63. अभी 62,250 हो गए. तो 750 का डिफरेंस हो गया. तो ये फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पे हो गया. सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी में से लेस, 750 लेस होंगे. देन लास्ट वन एडजस्टमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है. हमने कैपिटल कैलकुलेट किया. कैपिटल कैलकुलेट करने के बाद कैपिटल अमाउंट मिली हमें 60,000, 30,000 एंड 30,000. तो 7 नंबर की जो एडजस्टमेंट है उसकी पहले पोस्टिंग होगी
पहला इफेक्ट होगा यहाँ पे लिखते समय ऐसे लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन 60,000 30,000 30,000 7 नंबर जो एडजस्टमेंट है उसका फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पे किया हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में टू बैलेंस कैरिड डाउन, यही लिखना है टू बैलेंस कैरिड डाउन। और उसका दूसरा इफेक्ट होगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ये हो गया सेवेंथ एडजस्टमेंट का सेकेंड इफेक्ट, सेवेंथ नंबर एडजस्टमेंट है उसका सेकेंड इफेक्ट 60,000 30,000 एंड 30,000। देखो 7 नंबर एडजस्टमेंट मतलब न्यू कैपिटल एडजस्ट किया, उसका इफेक्ट कहाँ पे हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, और दूसरा न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड। अभी हमें क्या करना है, पहले कैलकुलेट टैली करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट टैली करने के बाद हमें यहाँ पे डिफरेंस मिला इतना, ये डिफरेंस ये हो गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, कहाँ पे जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे उसे ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। ये हो गया रिवैल्यूएशन। यहाँ पे डिफरेंस आया तो यहाँ पे हमने ट्रांसफर कर लिया। बाद में ये अमाउंट तो पहले से ही थी, ये अमाउंट तो पहले से ही थी, बाकी सब हमें टैली करना है। ये तो ओल्ड गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन एडवर्टाइजमेंट कंपल्सरी लॉस है तो वो पार्टनर्स के क्रेडिट में किया जाता है। ये 50% अमाउंट गुडविल में से 50% अमाउंट विड्रॉन की पार्टनर में, ये ओल्ड बैलेंस शीट का प्रॉफिट और लॉस का बैलेंस था। ये सब टैली करने के बाद हमें यहाँ पे डिफरेंस दिखेगा, दैट इज डिफरेंस, ये वाला डिफरेंस। तो उसे लिखते समय क्या लिखना है, क्योंकि बैलेंस में एडजस्टमेंट में क्या लिखा कैपिटल टू बी मेड थ्रू कैश, तो यहाँ पे क्या लिखना है जो भी डिफरेंस आएगा वो कहाँ पे जाएगा कैश में जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैश, बाद में ये टैली हो जाएगा। फिर वो बैलेंस हम ट्रांसफ़र करेंगे कैश अकाउंट। देखो कैश अकाउंट टैली करते हैं पहले, कैश अकाउंट गुडविल अकाउंट तो ऑटोमेटिकली टैली हो रहा है, हो गया टैली। कैश अकाउंट अभी हमें टैली करना है। तो देखो ये वाला पहला वाला बैलेंस है वो कैसा है जो ओल्ड बैलेंस शीट में दिया था, दूसरा वाला गुडविल लाया, तीसरी वाली अमाउंट है कैपिटल ब्रिंग। नेक्स्ट वन सेकेंड एडजस्टमेंट क्रेडिट साइड में क्या है, फर्स्ट कैपिटल आदि लैंड, तो ये है 50% अमाउंट या हाफ अमाउंट विड्रॉन बाय पार्टनर। एंड ये जो है आपको डिफरेंस दिखेगा वो हमने कहाँ से लेके आए हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से। ये कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 16,650, वो ट्रांसफ़र होगा बैलेंस शीट एसेट साइड। आपके टेक्स्ट बुक में ये प्रॉब्लम है पहले से ही, एक बार देखो, और आपके नोटबुक में आपको कंपलसरी जर्नल एंट्रीज करनी है। ये था आज का प्रॉब्लम, इसे प्रॉपरली रीड करो, देखो उसमें एग्जैक्टली क्या लिखा है क्या नहीं है, कहाँ पे कुछ क्या एडजस्टमेंट करनी है कहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये सब प्रॉपरली देखो और भी उसकी जर्नल एंट्री सॉल्व करो। ओके, एक बार फिर से बताती हुई इस प्रॉब्लम में हमने क्या पढ़ा, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल मतलब न्यू या एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो न्यू या एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या लगता है, न्यू रेशियो लगता है। तो न्यू रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हमें टोटल कैपिटल निकालना होता है। टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे, जो भी न्यू पार्टनर है उसने जो भी कैपिटल लाया है फॉर इन विच शेयर, तो उस शेयर से क्या करना है, उसे मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने हैं, बाद में आपको टोटल कैपिटल की अमाउंट मिल जाएगी। तो ये टोटल कैपिटल अमाउंट हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है पार्टनर्स को न्यू रेशियो में, सारे पार्टनर्स को न्यू रेशियो में। तो उसका पहला इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू बैलेंस कैरिड डाउन, और दूसरा इफेक्ट जाएगा न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड।